I have something special. I have something special for you guys today. Okay? And I'm not here to give my talk. I'm here to talk about someone. Okay. Listen. I'm here to talk about someone who's a true example of resilience. Okay? And success principle are same no matter what you do in life. Whether you do this business or anything else. Success principles are always same. Okay? So you've been listening to all the networkers about their story and everything, right? Now I want you to listen to someone who I'm going to bring up on stage. This person, believe me, it's impossible that you don't know this person actually, right? Okay, I have a long list of his accolades, his achievements on this phone actually, right? But I know more than this, what he truly deserves is our love. Because he's a true example of a dreamer. He's a true example of someone who never gave up on his dreams. He's a true example of someone who continued working towards fulfilling his dreams with resilience. He's coming from a very small place in Uttar Pradesh. Born in a humble family with lot of brothers and sisters. Okay? And after many years, he realized that he wanted to do something. He realized what exactly he wanted to do. And he wanted to start his career in that field. And he decided to go to a place which is called Dream City, Mumbai. And he was there in Mumbai, trying to set his feet actually in the industry. He had gone through a lot more than what you are going through actually, right? A lot more than what you are going through. You know, what you are going through is similar, but what he went through is maybe 10 times more than what you are going through actually. The struggle. People never believed in him, but he believed in his own dreams. Okay? How many people struggle to come here? How many people struggle to come here? You don't have money, but you decided to come here, right? Correct? It was one trip for you. For him, it was more than 15 years. When he was not knowing at that point of time in the beginning whether he will be able to earn his food for tonight or not actually, right? He's done all the odd jobs just to survive there, right? And जब बोलते ना, जब आता है, जब परीक्षा पूरी ऊपर वाले की होती पूरी, तो छप्पर फाड़ के मिलता है actually, right? So, he got many awards from different countries, including
Okay, let me tell you which industry he's coming from. He's coming from the Bollywood. Okay. And he's done amazing work. Lot of awards, international awards, including Cannes Film Festival, a lot of things actually, right? And I know, you're not interested in knowing the list of awards because that is just a piece of a trophy for him, right? But his experience, how he struggled and what made him reach there and fulfill his dream is what you want to know, right or not? Okay? Okay, I will give you a clue. I will give you a clue. You know, अपुन को लगता है कभी कभी भगवान अपुन ही चराए. Okay. Listen. Shh. जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक फोड़ेगा नहीं. छोड़. Okay, I know a lot of you know. Before I call him, I want you to see the video actually, right? कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है. कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है. गणेश का तुम है मैं. लाइफ बदलने वाला है तुम्हें. दादा का भाई का सबका बदला लेकर तरफ प्रेशर. मंटो जमाना ही ना काबिले बर्दाश्त. ना काबिले बर्दाश्त. अभी तो मिले ही. इतनी जल्दी खुशी भी हो गई आपको. जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया. शानदार जबरदस्त जिंदाबाद. So date with destiny. Join me. Bring the roof down to welcome none other than
नवाजुद्दीन सिद्दीकी. देख सके Okay. Guys. One more time, all together, and then we will talk, okay? Once again, help me welcome Nawazuddin Siddiqui. Okay. Can we talk now? Settle down. Shh. Guys. Now he knows we all love him, but we want to learn from him now, right? Okay? First of all, love you all. इतनी एनर्जी, इतनी वार्मथ आप लोगों के अंदर है. सच बता रहा हूं कि मतलब दिल बहुत खुश हो गया. और ऐसा वक्त आपकी लाइफ में कभी कभी आता है, लेकिन हमारी लाइफ में भी कभी कभी आता है. जितनी एनर्जी आप लोगों के पास है, और ये एनर्जी आप लोगों से ले जाके, जो एनर्जी मिल रही है आप लोगों से, उसको जब ले जाएंगे वहां पे बंबई में, तो बहुत डेफिनेटली कुछ बड़ा काम करेंगे. थैंक यू सो मच. Okay, guys. Before we start, I know you all want to listen that one thing once again, right? हाँ, तो पहले मैं डायलॉग सुना देता हूँ. जैसे हालांकि मेरे से अच्छे आपने मेरे डायलॉग बोल दिए थे, तो एक में डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ से बहुत मिलता हुआ वो डायलॉग, और आपकी लाइफ से भी बहुत मिलता जुलता है वो डायलॉग, आपको भी कनेक्ट करता है वो डायलॉग. वो है माझी फिल्म का, कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो. क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो उठ के कुछ करना चाहता है, कुछ करता है, उसी का साथ देता है. घर में पड़े रह के ड्रीम देखना उसका साथ नहीं देता. और मेरे ख्याल से जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि सपने, ड्रीम्स वो होते हैं जो रात को आपको सोने ना दें. जो भी आप करना चाहते हैं, उसके सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सपने ऐसे होने चाहिए जो रात की नींदें आपकी खराब करते हैं. Okay, नवाज भाई, हम सबको मालूम है कि आप जिस दौर से गुजरे हैं और जहां आप जिस मुकाम पे आज पहुंचे हैं, जाहिर है पढ़ने में और सुनने में और गुजरने में बहुत अंतर है, राइट? तो थोड़ा लोगों को आप बताएंगे, आप किस तरह ये शुरुआत हुई, पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, शुरुआत मेरी बिल्कुल आप ही की जैसे हम सब हैं, हम उसी क्लास से आते हैं. हम सब लोग एक छोटे से गांव से, कस्बे से, एक लोअर मिडिल क्लास, बहुत सारे भाई बहन. जब मैंने सपना देखा कि यार मुझे एक्टर बनना है, हालांकि बहुत देर में देखा, जब मैंने सपना देखा कि मुझे एक्टर बनना है, तो पहले मेरे आसपास के जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बोला कि ज़रा अपना स्टेचर, अपना हुलिया तो देख ले. मतलब पतला दुबला आदमी, काला कलूटा है, कहाँ तुझे कौन काम देगा जी? इंडस्ट्री में तो बड़े गोरे गोरे लंबे लंबे लोग होते हैं, वहाँ पे तो कहाँ, मतलब कहीं भी ठहरता नहीं है तू. तो बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को लेके कि यार हम नहीं कर सकते क्या? मतलब हम सपने नहीं देख सकते कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते? तो एक्चुअली शुरुआत वहीं से ही हो गई थी. घर के आसपास के लोग, रिलेटिव्स लोग बोलने लगे थे कि
आईने में शक्ल देखी कभी? तो इस तरह के कमेंट्स बहुत पहले से सुनने पड़ रहे थे मुझे। जब इंडस्ट्री में आए तो जैसे किसी ऑफिस में जाते थे किसी डायरेक्टर के, तो असिस्टेंट जो होता था वो बोलता था, जब खड़े हो जाते थे जाके, तो असिस्टेंट बोलता था क्या है? मैंने एक्टर हैं। तो बोले दिखने से तो लगता नहीं तो एक्टर है। मैंने कुछ करके दिखाएं, क्योंकि तैयारी बहुत करके आया था मैं ट्रेनिंग लेके आया था, बहुत सारे प्लेस किए थे मैंने। मुझे ये मालूम था कि 1 मिनट का भी अगर रोल मुझे मिल गया ना फिल्म में, तो 1 मिनट के लिए मैं ऑडियंस को रोक दूंगा कि सी व्हाट आई एम। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों आया मेरे अंदर? मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई थी, बहुत सारे प्लेस किए हुए थे, ट्रेनिंग ली हुई थी, अपना काम जानता था, इसलिए ये कॉन्फिडेंस आया। अगर ये चीज़ें आप नहीं जानते, कि अपना काम नहीं जानते और कॉन्फिडेंस है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो इसलिए अपना काम जानना, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप वंडर कर सकते हैं वर्ल्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल मुझे कभी कभी बहुत अच्छे से याद आता है। एडिसन थॉमस ने बल्ब का आविष्कार किया था, हजारों प्रोसेस से गुजरा वो, कई एक्सपेरिमेंट किए, बल्ब नहीं बना। लास्ट में जाके बहुत सालों के बाद में बल्ब का आविष्कार उसने इन्वेंट किया, बल्ब। तो उससे पूछा गया कि यार ये वेरी गुड यार, बल्ब आपने लाइट क्रिएट कर दी, बल्ब बना दिया। तो पता है उसने क्या बोला कि ये आसान काम नहीं था, मतलब 1000 प्रोसेस, 1000 तरीके थे जिनसे बल्ब नहीं बना। तो मुझे बाद में क्या पता चला कि 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनता। तो क्या है कि करते करते आपको मालूम है कि जब आपको भी एक सुर पता चलता है कि हाँ करते जा रहे हैं, एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आपको सुर पता चलता है कि हाँ दिस इज मी एंड व्हाट कैन आई डू, ये मैं कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो कब आपकी लाइफ में आएगा, आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो दैट मीन वो सुर आपको मिल गया है, अब आप क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें। हम लोगों का एक छोटी छोटी सी फैमिली से हम लोग यहाँ आते हैं, इट मीन्स के आपने एक बहुत बड़ी जर्नी कवर की है। अब बस यही है कि जो पैशन आपके अंदर है, जो मेहनत करने का आपके अंदर जज्बा है, वो जाने ना दें बस। और उसी शिद्दत से आप काम करते हैं तो डेफिनेटली जो आप चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स है, वो पूरे होंगे। नवाज भाई, आई एम श्योर जब आपने स्टार्ट किया, पैशन, जज्बा, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, फिर आप निकले अपने शहर से, मुंबई आए, बट वो कहीं ना कहीं हर जर्नी में होता है कि जब आप स्ट्रगल से गुजरते हो तो आप किस टाइप के स्ट्रगल से गुजरे और किस चीज़ ने आपको लगाए रखा वहाँ पे। कितने तो चले जाते हैं छोड़ के, तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप कभी नहीं गए? देखिए, मेरे दो चीज़ों की वजह से मैं नहीं जाता था अपने गांव वापस। जब मुंबई में आ गया था मैं नहीं जाता था। एक रीज़न ये था कि मैं अगर अपने गांव चला गया तो उन लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा जो लोग बोलते थे कि देखा, हम तो पहले ही बोलते थे तेरी शक्ल वगल तो कुछ है नहीं, क्यों जा रहा है खामखा, क्यों धक्के खा रहा है वहाँ पे। एक तो इसलिए इस डर से नहीं मैं जाता था। दूसरा ये था कि ऐसे लोग होना चाहिए लाइफ में, सबकी हाँ, लाइफ। आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होने चाहिए। आई थिंक कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो आपको लेट डाउन करते हैं ना, वो उनको ये नहीं पता होता कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और वो आपके आसपास के ही लोग होते हैं। जब आपके आसपास के लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगे या लेट डाउन करने लगे तो समझिए कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। आपने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो आपके फैमिली वाले सारे लोगों ने बिलीव किया था आप पे कि आप मतलब सही काम करने जा रहे हो? क्या कर रहे हैं? आपकी इस जर्नी में हाँ, सारी फैमिली ने बिलीव कर लिया था कि आप तो कर लोगे
नहीं, फैमिली में तो एक भी आदमी नहीं था जिसको कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मेरी माँ को छोड़ के। क्योंकि माँ को क्या होता, अब हर माँ को अपने बच्चे पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। हर माँ को अपना बेटा हीरो हर नजर माँ को, आता, राइट? तो मैं जब अपनी माँ को बोलता था कि मैं दिखने में कोई खास लगता नहीं हूँ, क्या मैं कर लूँगा क्या? कहने दिखने में कोई खास क्यों नहीं लगता, तू तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो उनका जो भी कॉन्फिडेंस था, भले ही झूठा कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो मेरे लिए काम आ गया। कभी कभी क्या होता है ना कि माँ बाप का दिया हुआ एक कॉन्फिडेंस ना, भले ही झूठा हो और बच्चा उसको सच मान लेता है, तो वो बहुत कुछ करा देता है आपसे। इसलिए कहते हैं ना कि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है, माँ बाप का जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर आपको माँ बोल रही कि यार मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है, मेरा बच्चा ऐसा मेरा बच्चा दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी है, या इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिमाग है, तो उसको सच मान लेना चाहिए। क्या पता क्या हो जाए, और बंदे ने अपने पे विश्वास कर लिया उसने, और उसी से वो वंडर कर दे। सो आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, मतलब हमने ऐसा पढ़ा है और देखा भी है, और भी हमारी बात भी हो रही थी आपसे जब, कि मतलब रोजी रोटी तो रोज की चाहिए खाने के लिए। देखिए, मेरा एक वो था कि ऑफ कोर्स जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो खाने के लिए भी नहीं था। हम लोगों का ये था, 5-6 दोस्त एक ही कमरे में रहते थे हम लोग। तो सुबह हम और पार्ले का जो बिस्किट आता है ना, पार्ले का नाश्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट में पार्ले जी और चाय, उसका ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर लंच टाइम हुआ तो लंच टाइम में भी पार्ले जी और चाय पी ली। फिर डिनर का टाइम हुआ तो पार्ले जी और चाय। तो ये काफ़ी सालों तक चलता रहा हमारा। दूसरा ये था कि जब क्या होता था, अच्छा हमें एम मालूम था अपना कि हमें क्या करना क्या है। उसके लिए बहुत सारे और जॉब भी किए। मैं यहाँ तक कि एक टॉयज कंपनी थी, वहाँ पे मैं वॉचमैन भी बना, वो भी किया। लेकिन शर्म नहीं आती थी क्योंकि एम कहीं और था। ये तो रास्ते पड़ाव थे। तो मैंने कहा पड़ाव है, चलता चल जाएगा, लेकिन एम तो कुछ और है। तो कभी कभी ये होता था कि पैसे नहीं है, बहुत सालों तक पैसे नहीं है, क्या करें कि किसी दोस्त से उधार ले लिए और उसको बोल दे कि 15 जनवरी को तेरा पैसा वापस कर दूंगा मैं। तो 15 जनवरी जब आती थी तो वो बोलता था पैसे दे भाई, तो किसी और से उधार लेके उसको दे देते थे, उसको बोल देते कि फरवरी में तेरा पैसा दे देंगे। तो इस तरह तक बहुत सालों तक चलता रहा। बट यही था कि उधार भी लिया, इस तरह के काम भी किए, भूखे भी रहे, बट एम एक ही था। काम जानते थे और कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि काम जानते थे इसलिए कॉन्फिडेंस था कि एक दिन अगर मौका मिल गया तो, मतलब ये कॉन्फिडेंस कि मैं काम जानता हूं और जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बेहतर तो मैं कर दूंगा, भले चाहे मुझे 1 मिनट का काम मिले। तो ये इस तरह का कॉन्फिडेंस था। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग, योर प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जो भी आप काम करते हैं उसके लिए प्रैक्टिस, उसके बारे में जानकारी होना, उसकी स्किल होना, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि बिना जाने आप किसी भी चीज़ में ना तो स्किल अचीव कर सकते और ना ही कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते। तो ये है, फैक्ट है ये बात। तो आपकी इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके साथ में स्टार्ट किया होगा, मगर ड्रॉप आउट हो गए। अब वो होते हैं टारगेट वाले। तो वो क्या मतलब उनके अंदर वो किस चीज की वजह से वो ड्रॉप आउट हो गए? एक होता है कि एक तो पैशन है। पैशन, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो चाहता कि सब जितने भी लोग थे इस्टेब्लिश हों। बट मुझे ये नहीं आज तक पता चला कि सक्सेस कैसे होता है, लेकिन अनसक्सेसफुल कैसे होता है ये मुझे पता है, मेरे दोस्तों से पता चला मुझे। एक तो ये था कि मतलब कई बार ऐसा हुआ कि टाइमिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक टाइमिंग पे पहुंचना आपको बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, कि अगर जो चीज़ आज अचीव कर सकते हैं और उसकी एक टाइमिंग होती है, अगर उस टाइमिंग पे आप नहीं हैं तो कोई और आ जाता है।
कहते हैं ना कि जैसे बॉलीवुड में हमारे यहाँ एक कहावत है कि बॉलीवुड का दरवाज़ा थोड़े टाइम के लिए खुलता है, उसमें जितने लोग घुस जाते हैं तो घुस जाते हैं, बाद बंद हो जाता है वो। यही लाइफ का भी टाइमिंग है। तो इट्स ऑल टाइमिंग एक्चुअली। बहुत सारे लोग थे, मेरे दोस्त थे, वो वापस चले गए। वो टारगेट लेके आए थे एक्चुअली कि मैं 2 साल इस फील्ड में देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊँगा। तो पहले ही आपकी बुनियाद इतनी कमज़ोर है, तो फिर कैसे अचीव करोगे आप अपना गोल? तो ये एक रीज़न था एक्चुअली। अनसक्सेसफुल लोगों का जो रीज़न होता है वो यही होता है आई थिंक, कि अगर यहाँ हुआ तो ठीक है, फिर ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो फिर और कुछ कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो पूरी ज़िंदगी जो है वो बदलते रहते हैं, अपना प्रोफेशन बदलते रहते हैं। ऑप्शंस होते हैं। मैं भी शायद, हाँ, ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। मैं भी शायद अपने काम के लिए आपके अंदर पैशन नहीं है, मैडनेस नहीं है। कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक मैडनेस होना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी वो उस दौरान स्ट्रगलिंग फेस के दौरान कभी ऐसा आया दिमाग में कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे, और अगर आया तो किस से आप वापस आपने बाउंस बैक किया? कई बार जैसे होता था, डिप्रेशन आता था, बहुत साल 12-15 साल तक काम नहीं मिला, तो डेफिनेटली हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मेरी माँ, मुझे उस वक्त पे तो मोबाइल आए नहीं थे, पेजर आए थे। या तो लेटरबाजी होती थी या पेजर होता था। पेजर भी बाद में आए थे, लेकिन हम तो उस वक्त पे थे जब चिट्ठी लिखते थे। तो मेरी माँ हमेशा एक चीज़ लिखती थी, कभी कभी एक लाइन लिख देती थी, वो बहुत मोटिवेट करते थे वो लाइन। तो जब मुझे 7-8 साल हो गए, मुझे कुछ काम नहीं मिला, तो मैं बहुत डिप्रेस होकर लेटर लिखता था कि कुछ काम अभी कुछ बन नहीं रहा, कुछ नहीं, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी माँ ने एक बार एक लेटर लिखा, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि कचरे का जो ढेर होता है उसके भी दिन बदलते हैं, तू तो इंसान है। वो कहते हैं 12 साल में कचरे के भी दिन बदलते हैं, तू तो इंसान है। तो मुझे लगता था कि यार अभी तो 7 साल ही हुए हैं, देखते हैं 7 साल और करते हैं, 10 साल और तो मेरा ये था कि ये हमेशा ये था कि मुझे अगर सक्सेस 50 साल में भी मिलती ना, तो भी मैं करता रहता। मतलब मैं इतना बेशरम हो गया था, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इतना बेशरम हो गया था कि देखता हूँ सक्सेस कहाँ जाती कहाँ है मुझे छोड़ के। अभी आपको फिर काम मिलना शुरू हुआ और लोगों ने शुरू से आइडेंटिफाई करना शुरू किया, यू नो दिस इज अ ग्रेट एक्टर एंड एवरीथिंग, राइट? फिर उसके बाद में वो ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया कुछ गलत बोलता है, क्योंकि जब तक आपको काम सक्सेसफुल नहीं होता आदमी, तब तक तो कोई कुछ नहीं बोलता है। जैसी ही सक्सेस मिली, फिर उसके बाद में उंगली चालू हो जाती है ना। तो आपके साथ भी हुई है, वो देखा है। वो सबके साथ होती है, स्पेशली जो सक्सेसफुल होते हैं उनके साथ ट्रोलिंग जरूर होती है, ये फैक्ट है। और जब ट्रोलिंग होने लगा ना, ये समझ लो कि आप अचीव कर रहे हो चीजें, आप सेलिब्रिटी बन गए एक्चुअली। कभी कभी ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई फिल्म हमारी रिलीज हुई, आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी भी रैंडम किसी भी बंदे ने फिल्म देख के लिख दिया कि इस फिल्म को देता हूं मैं 2 स्टार। तो कभी कभी मुझे लगता है मैं पूछूं उससे, तू है कौन यार? तो मैं तो तेरे से नहीं पूछ रहा हूं कि कितने स्टार वाली फिल्म है मेरी। तो बट ऐसे लोग होते हैं, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी ट्रोलिंग हो रही है, इसको मतलब पॉजिटिव लेना चाहिए। नेगेटिव अगर जवाब देंगे तो आप सामने वाले आदमी को एस्टैब्लिश कर रहे हो, इसका मतलब जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। मैंने देखा है कि आप काफी लोग ना, वो लिस्ट ऑफ अवार्ड्स तो लंबी है, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं कि ऐसे फिल्म फेयर और वो सब बड़ी जगह या आप उसके पीछे भाग रहे हैं। और मतलब तो क्या लोग आते हैं फिल्मों में, तो कोई अवार्ड लेने आता है, कोई पैसा कमाने आता है। आपका अल्टीमेट, व्हाट एग्जैक्टली वाज योर अल्टीमेट गोल टू कम हियर? मैं सच बताऊं आपको कि मैं कभी भी अवार्ड्स के लिए फिल्में नहीं करता हूं। मैं फिल्में करता हूं जो मेरा दिल करता है,
जिनसे मुझे लगता है कि मेरे अंदर की जो, कहते हैं ना कि एक आदमी के अंदर हजारों इंसान होते हैं, आप उसको टैप करेंगे ना तो आप ही के अंदर एक फादर होता है, आप ही के अंदर एक ब्रदर होता है, आप ही के अंदर एक फ्रेंड होता है, आप ही के अंदर एक खूंखार आदमी होता है, सब कुछ आप ही के अंदर होता है, यू नो। थैंक गॉड हम ऐसे ऐसे प्रोफेशन में हैं कि हमें वो टैप करने का मौका मिलता है, वो पर्सनैलिटीज़ निकालने का मौका मिलता है जो आपके अंदर हैं। बहुत सारी, कहते हैं ना एक ही इंसान के अंदर हज़ारों इंसान होते हैं। और एक होता है कि मैं लाइफ से बहुत डिमांडिंग हूँ, कि मैं एक ही लाइफ में बहुत सारी जिंदगियाँ जीना चाहता हूँ। तो जब भी मुझे रोल मिलता है डेफिनेटली कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कि कभी कभी क्या होता है, जो आपके साथ भी वो प्रोसेस होती है, जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें कब अचीव कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, कभी फेलियर होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी कुछ चीज़ मिल जाती है आपको तो उससे खुश हो जाते हैं आप। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या होगा किसी चीज़ पे ये आप मत सोचिए, सिर्फ आप अपना काम करते जाइए। अगर ऑनेस्टली आप अपना काम कर रहे हैं तो लोग उसको समझ रहे हैं। लोग कोई बेवकूफ़ नहीं होते, लोग बहुत समझदार होते हैं। जब आप अपना काम कर रहे होते, करते जा रहे होते हैं, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। करते करते क्या होता है कि लोगों को आइडिया होने लगता है कि आपके दिमाग में कुछ और है, कुछ बड़ा एम है। वो कहते हैं ना कि बड़ी चीज़ के लिए बड़ी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। अब छोटी छोटी चीज़ों में मैं उलझ के रह गया, अच्छा यहाँ से, अच्छा आज ये अवार्ड मिल गया, खुश हो गया, मैं ये अवार्ड ले गया, खुश हो गया, तो मेरे बहुत छोटे एम हो जाएंगे। जहाँ पे भी आपको इन चीज़ों से खुशी हो रही है ना, अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंज दे दो, उससे भी बड़ा चैलेंज दे दो, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी चीज़ की। कहते हैं जब आप गोता लगाते हैं समंदर में तो आपको एक दुनिया दिखती चली जाती है जो आपको पता ही नहीं होता, और डीप जाते हैं और दिखता है, और डीप जाते हैं और दिखता है। तो मुझे लगता है कि कोई लिमिटेशन नहीं है कोई किसी भी चीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं एक ही रोल करके खुश हो गया, या मैंने सोचा कि चलो अब तो ठाकरे कर लिया मैंने, इतना इंटरेस्टिंग रोल था, अब खुश हो जाता हूँ, इससे बात क्या है। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ग्रोथ रोक रहा हूँ। तो ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए इंसान की कभी भी। आपने आज ये अचीव कर लिया तो आप खुश होकर बैठ जाओगे ना, तो आपके अंदर जो और है, और बहुत सारी चीज़ें, एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनलिमिटेड चीज़ होती हैं। ज़रूरी है कि उसको डिस्कवर करना। सब कुछ आप ही के अंदर है। हर साल, हर मिनट, हर महीने आप अपने आप को डिस्कवर करते जाओ, क्योंकि इंसान एक ऐसी इस ब्रह्मांड में एक इंसान ऐसी चीज़ है कि जिसने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। आज हम यहाँ आ जाते हैं, मतलब 3.5 घंटे में कहीं चले जाते, तो जिन लोगों ने इन्वेंट की हैं चीज़ें, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, उन लोगों को मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनको मैं तो उनके सामने सर झुकाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को इतना कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने, इतनी सारी चीज़ें। उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है तो ये हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो जो लोग डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें से आप भी हैं, हम सब लोग हैं, हम ही लोगों में से आते हैं। कोई स्पेशल नहीं आता, कोई बड़ी फैमिली से नहीं आता, कि बड़े बाप का बेटा नहीं आता, कि जो आप ही हम ही लोगों की फैमिलीज होती हैं। लोअर मिडिल क्लास ही होती हैं जो लोग इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ का कॉन्फिडेंस हमें अपने आप पे, क्योंकि हम करना चाहते हैं एक्चुअली। ये हमारी जो कम्युनिटी है लोअर मिडिल क्लास की या मिडिल क्लास की जो कम्युनिटी है, ये इनके आगे टारगेट्स होते हैं, बड़े बड़े एम होते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और बहुत करते भी हैं, जिनकी वजह से हम उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमेशा एक सतत प्रयास जो है ना, हमेशा रखना चाहिए आई थिंक। तो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलो या कोई भी बिजनेस बोलो, जो भी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं मैं, तो मोस्टली सब एक ही बात करते हैं, तो सक्सेस प्रिंसिपल जो है, हर आदमी ये बोलता है कि सपनों के पीछे लगे रहो, छोड़ो मत कभी, करेक्ट, छोड़ो मत कभी, सपनों के पीछे लगे रहो, राइट। तो
आपको ऐसा लगता है क्या कि जब जिस जर्नी से आप गुजरे हो, अगर कल की डेट में कोई और पैशन आ गया, एग्जाम्पल कुछ और करना चाहोगे, तो भी ये जो भी सीखा आपने इस दौरान, वही प्रिंसिपल वहाँ काम आएगा? आई थिंक आपको बिल्कुल बिल्कुल, बट यू नो मेरी लाइफ यही है। मैं शायद, मुझे अभी लगता है कि मैं इसी चीज़ के लिए बना था, क्योंकि एक आदमी एक ही काम के लिए बना होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए बना था, मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। हाँ, जो आप बोले वो भी ठीक है कि अगर मैं कोई दूसरा काम करूँगा तो वही पैशन, वही प्रोसेस उसमें भी लगेगी। बट आई थिंक मैं सच बताऊँ, इस दुनिया में एक इंसान सिर्फ एक ही काम करने के लिए आता है, उसी में बहुत सारे लोग दूसरे काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। तो उनको वही मैं बता रहा था ना कि सुर नहीं मिलता, कि जो आपके अंदर एक खासियत, ऊपर वाला ना हर आदमी को एक स्पेसिफिक क्वालिटी दे के भेजता है, उसको समझने में बहुत साल लग जाते हैं, और जिस दिन वो समझ लेता है उसको कहते हैं कि इसने सुर पकड़ लिया। तो मुझे लगता है कि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं काम कर सकता, क्योंकि मेरी लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ है, ये एक्टिंग में मेरी लाइफ है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे एक्टिंग से दूर ले जाइए, एक्टिंग करवाना बंद कर दीजिए, तो मैं खुद मतलब मेरा हो जाएगा काम तमाम। तो आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड नाउ दिस फेम, आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, अभी इतनी प्रसिद्धि, ये फेम मिला है, तो कैसा लगता है अभी आपको? इसी मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि फेमस, पॉपुलर होना ये तो कोई भी हो जाएगा। सड़क पे एक नंगा आदमी चला जाएगा, आप कपड़े उतार दिए, सड़क पे चलते चलते आप फेमस हो जाएंगे आज की डेट में, है ना? कहते ना, एक हमारे टीचर थे, वो बोलते थे कि सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रसिद्धि, आप जैसे मैंने बताया, कपड़े उतार दीजिए आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में सिद्धि प्राप्त करना वो बहुत विरले होते हैं, यू नो। जो भी आप काम करते हैं उसमें डिस्टिंक्शन अचीव करना वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत पैशन, बहुत ही हार्डवर्क, मैडनेस, इन सब चीजों की जरूरत होती है। बड़ा सन्नाटा सा हो गया। क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। वाह। आप जो आज की डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म जो चल रहा है, राइट? हाँ। तो आपको क्या लगता है, अगर आप किसी एक फिल्मी फैमिली में पैदा होते और वहां से आप एक्टिंग शुरू करते और अभी आपने इस तरह करी और यहाँ पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली बेनिफिट ये होता कि आपको शायद ब्रेक जल्दी मिल जाते हैं, बट आपको क्या लगता है कि उनसे आप क्या बेनिफिट मिला है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस स्ट्रगल एक्चुअली? मुझे लगता है कि हालांकि मुझे 12-14 साल के बाद काम मिलना शुरू हुआ, बट मुझे लगता है अच्छा था, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। अगर मैं शायद फिल्म फ्रेटर्निटी से ना होता तो जो एक्सपीरियंस शायद वो उससे वंचित रह जाता मैं, यू नो। और एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ अलग ही करवाता है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप अपने सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर ही लेते हैं, यू नो। मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हुआ, ये 12-15 साल के बाद चीज़ें मिलनी शुरू हुई मुझे लगता है कि वो बहुत सही था। और जिन लोगों को, जैसे मैंने इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा, किसी ने कुछ बोला था, एक बंदे ने बोला था, बहुत अच्छा मुझे वर्ड लगा था, कि जो आप उनकी बात कर रहे हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करें, जो फिल्म स्टार के बेटे आते हैं, वो क्योंकि उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक फिल्म बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उनको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, उनमें और हमारे में फ़र्क ये है कि जहाँ हमारे सपने ख़त्म होते हैं वहाँ उनका स्ट्रगल शुरू होता है। हमारा सपना होता है कि एक फिल्म मिल जाए, और एक फिल्म मिलने में 12-14 साल लग जाते हैं, और उनको वो फिल्म, उनका पहला स्टेप होता है, वो मिल जाती है। बट उसके बाद उनको भी ऑफ कोर्स अच्छा काम करने के लिए हर आदमी को
मेहनत करनी पड़ती। सो ये सारे ड्रीमर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे ड्रीमर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मतलब आपको, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके यहाँ आए हैं, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। हर इंसान की एक अपनी कहानी है, बट वो कहानी दुनिया तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर उनको पहुंचानी है वो कहानी दुनिया तक, तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि सपने जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो रात को सोने ना दें, है ना। अगर ड्रीमर्स हैं, ड्रीम देखते हैं, तो डेफिनेटली एक पैशन है मुझे, इसीलिए तो यहाँ एक पड़ाव तो आपने पार कर ही लिए कि इतना कुछ अचीव किया कि आप आज यहाँ, हम लोग यहाँ हैं। ये भी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप जब अपने पास्ट में जाके देखते हैं तो आपको खुद पता चले आप कहाँ से आए, कैसी फैमिली थी, कैसी चीज़ें थी, है ना। बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज यहाँ बैठे हैं हम आप, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट मेरा कहना यही कि ये जो अचीवमेंट हुआ ये यहाँ तक हो गया, इसके बाद जो आपके अंदर जो इतने सालों से करने की जो आदत थी वो जाने ना दें अभी भी। इसके बाद भी आप उसी तरीके से लगे रहें। जैसे मैंने बताया कि वो एक प्रोसेस है जो हमेशा, ये अपनी नियति बना लीजिए आप कि आज यहाँ पहुँचे, इसके बाद भी पहुँचना है। क्योंकि आज अगर आप यहाँ शांत बैठ गए तो यहीं तक रह जाएंगे। इसके बाद भी बहुत, कहते हैं ना कि अनलिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं किसी भी चीज़ की। तो उसके बाद भी आप प्रयास करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ यही होती है। लाइफ ये नहीं होती कि मैंने मान लिया कि मैं सक्सेसफुल हो गया और बैठ जाता हूँ मैं घर में। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी हैबिट में है, मेरे ब्लड में है। हम लोगों के ब्लड में होना चाहिए कि हमें करते जाना है। और आई थिंक यही लाइफ है। वो बहुत ही कैजुअली इस चीज़ को लेना चाहिए कि हमारी लाइफ यही है, हमें करते जाना है। बैठ गए ये सोच के कि मैंने अचीव कर लिया, वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे आपने बोला वो बिस्किट और चाय, बहुत सारे लोग शायद उसी दौर से भी गुजर रहे होंगे। लेकिन डिफरेंस वो जो आपके दिमाग में कभी आया नहीं कि यार कहाँ आ गए। कभी कभी आ जाता है दिमाग में लोगों के कि इससे तो अच्छा कुछ नौकरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ड्रीम नहीं है या पैशन नहीं है या क्या करना पड़ेगा उनको? मुझे जैसे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैं वही बता सकता हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ मेरी लाइफ में कि पर्सनैलिटी को अंडरस्टिमेट किया गया कि भाई यार क्यों 7-8 साल हो गए कुछ मिला नहीं, तो क्यों ट्राई कर रहे हो, कुछ और कर लो। ऐसा हुआ, फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, डिप्रेशन भी बहुत हुआ। आई थिंक वही वक्त होता है जहां आपको संभलने की ज़रूरत होती है। जब आप एक्सट्रीमली डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे होते हैं, वही वक्त होता है जहां आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत होती है कि ये वक्त है, चला जाएगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि एक बहुत बड़े नेताजी थे, वो हर बार इलेक्शन में हार जाते थे। तो एक साधु बाबा के पास गए कि बाबा मेरा 15 दिन के बाद इलेक्शन है, मुझे कुछ ऐसा दो, मैं इलेक्शन जीत जाऊं इस बार, क्योंकि हर बार हार जाता हूं मैं। तो बोले बेटा मैं तुझे हाँ मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा उस पर चला गया। हाँ, एक राजा की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, नेता की नहीं, वो थोड़ा गलत हो जाएगा आज के माहौल में, तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो एक बहुत बड़े एक राजा थे जिनकी बड़ी हालत खराब हो गई। तो क्या करें, बहुत ही मतलब जंगलों में जाना पड़ गया उनको। तो एक वो क्या करें, तो किसी ने बताया एक बाबा हैं, उनके पास चले जाओ। तो बाबा के पास गए कि बाबा मेरी हालत ख़राब हो गई, क्या करूं, मेरी रियासतें भी छिन गई, राजपाट मेरा सब कुछ छिन गया, क्या करूं बताओ। तो बाबा ने दो पर्चियाँ दी उनको 2 पर्चियाँ दी कि बेटा इससे भी हालत तुम्हारी ख़राब हो जाए अगर, तो एक पर्ची खोल के देख लेना, ठीक है।
और जब बहुत बढ़िया हालात आ जाए तुम्हारे, बहुत तुम वापस से फिर से वहीं आओ, तब भी एक बार खोल के देख लेना तो ठीक है। वो 2 पर्ची लेके अपना चले गए और जैसे जा रहे थे तो कुछ लोग मिले, उनके साथ मिलके उन्होंने प्लान किया, वापस से फिर से अपनी रियासतें जीत ली उन्होंने। और हाँ, मतलब जैसे वहाँ से गए वो तो और हालत ख़राब हो, उन्होंने यहाँ तक आ गए कि घास खाना पड़ रहा था उनको। तो बोले अब यार पर्ची खोल के देख ही लेता हूँ, जो बाबा ने बोला। तो पर्ची खोल के देखी तो उसमें लिखा था वक्त है चला जाएगा। तो उससे उनको कॉन्फिडेंस मिला और वापस से फिर उन्होंने रियासतें जीतनी, अपना राजपाट वापस ले लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया। और जैसे वापस से फिर वही दिन आ गए तो अय्याशी करने लगे वो। अब तो एक दिन जाएगा ही नहीं मेरे पास, अब तो सब कुछ आ गया मेरे पास, अब क्या होगा। तो उनके दिमाग में एक दिन आया कि यार एक पर्ची बची है। बाबा ने बोला था कि जब मेरे अच्छे दिन आ जाएं तो एक बार ये पर्ची खोल के देख लेता हूँ। तो आज तो अच्छे दिन है मेरे, पर्ची खोल के देख लेता हूँ। तो वापस से वो पर्ची खोल के देखी, उसमें भी लिखता है बेटा वक्त है चला जाएगा। तो हर चीज का वक्त है। जब डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तो ये समझो कुछ टाइम का वक्त है, ये चला जाएगा, कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब अच्छे दिन आ जाएं तो थोड़ा उस वक्त भी संभल के रहना चाहिए, जमीन पे पैर रखने चाहिए, क्योंकि ये भी जाने वाला है। तो जब आपने बोला कि इर्द गिर्द के लोग जो थे शुरुआत में, वही कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं शुरू में। मदर ने कॉन्फिडेंस आप किया, बट मैंने आपके इंटरव्यू में सुना है कि फादर वाज आल्सो नॉट सपोर्टिंग यू इन द बिगिनिंग, राइट? तो फादर वाज नॉट सपोर्टिंग इन द बिगिनिंग। आपके फादर भी आपके काम के लिए शुरू में, मदर वाज सपोर्टिंग, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी की वाइफ सपोर्ट नहीं करती है, किसी का हस्बैंड, और ये बोलते हैं कि बाहर वालों को तो संभाल सकते हैं, बट घर वालों को कैसे संभालें? तो मतलब हम सबके साथ में होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरे फील्ड का इंसान आके वो बात करता है, क्योंकि सब जगह ही होता है, तो शायद लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। देखिए, अब उनका भी मानना सही है। अगर कोई आप पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उनको कोई रिजल्ट मिला नहीं है अभी। बट मुझे लगता है कि आपको खुद को अपनी लाइफ जीने, क्योंकि क्या होता है कभी कभी, अब अगर हम मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पे चीज़ थोपते हैं, या बहुत सारे जो आपके गार्जियंस होते हैं वो अपने बच्चों पे, अपने लोगों पे चीज़ थोपते हैं कि बेटा ये मत कर, ये कर। अगर वो करने भी लगा तो उसमें वो करता ही रहेगा। वो सक्सेस जो अचीवमेंट होते हैं वो नहीं हो पाएगा उसमें। इसलिए आई थिंक, मुझे लगता है कि चाहे वो वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको वो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उसी में वो अचीव कर सकता है चीज़ें, क्योंकि वो उसका पैशन है शायद। और जिसका जो पैशन होता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। भले ही कुछ टाइम के लिए ठीक है नहीं मिलेगी, मे भी शायद उसका जो पैशन है, वो जो सोच रहा है, उसके लिए उसको बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। आई थिंक देनी चाहिए। यही लाइफ है। लाइफ ये नहीं है कि भाई आपने जॉब कर लिया और आप उसी में सेटल हो गए और अब कुछ करना नहीं है मुझे। जैसे सरकारी काम होते हैं, सरकारी जॉब होते हैं, उसमें कि भाई मिल गया ठीक है, अब ये सेटलमेंट हो गया, सब कुछ अच्छा है। बट उसमें क्या होता है ना कि स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है। यू नो, अगर आप जैसे आज आप ये काम कर रहे हैं तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, आप आज़ाद हैं, आप कितना कहीं भी जा सकते हैं आप। और ये अलाउड होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड्स हों, एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है। और क्योंकि आप सपोर्ट उसके पैशन को कर रहे हैं, उसके पैशन को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक अगर किसी भी इंसान के अंदर पैशन है, मैडनेस है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक बाजार में मिलता है क्या ये? है बाजार में मिलता है क्या? बाजार में मिलता, पुड़िया थोड़ा ही है। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोग आते हैं, अरे यार नवाज भाई बताओ यार अच्छी एक्टिंग कैसे करें। मैंने पुड़िया है मेरे पास, कल ले जाना। तो ये सारे ड्रीमर्स हैं, आप भी ड्रीमर हो, हम सब ड्रीमर्स हैं, राइट? तो आपको लगता है कि हम दुनिया से थोड़े अलग हैं? हर पागल आदमी दुनिया से अलग होता है।
पागलपन है तभी तो यहाँ बैठे हैं। और जिस दिन ये पागलपन खत्म उस दिन जिंदगी खत्म। जिस दिन ये पागलपन खत्म। हाँ वही होता है ना, जैसे जैसे ऑफिसेज में काम करने, सरकारी काम करने वालों के कोई पागलपन खत्म हो जाता है ना, तो वो सेटल हो जाती है उनकी लाइफ, जैसे मैंने बताया। पागलपन खत्म तो सब कुछ खत्म है, फिर उसके अलावा कुछ नहीं। ये एक्चुअली पागलपन ही होता है कि हम इतनी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, इतने दूर से कहाँ कहाँ से, छोटे छोटे, आई एम श्योर कि मतलब हर रीजन से, हर हमारी कंट्री के हर स्टेट से लोग आए हुए हैं। कोई साउथ से आया हुआ है, कोई नॉर्थ से आया हुआ, और आज यहाँ बैठे हुए हैं। इससे बड़ी मैडनेस क्या हो सकती है? या मुझे 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 कोई और जगह बताइए ऐसी कि जहां पे इतने सारे लोग बैठे हों, अलग अलग जगहों से आके एक साथ बैठे हों। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी जगह है। ये एनर्जी क्या है? ये एक पागलपन ही है ना। एक 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 आखिरी सवाल। आई एम श्योर यहां पे भी कुछ लोग बैठे हैं, उसके पड़ोस में बंदा बैठा हुआ है, वो अगले 1 से 2 साल में कहीं पहुंच जाता है, बट वो इंसान फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। एक इंसान अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, और एक दूसरे ने साथ में शुरू किया था, वो कहीं और पहुंच गया है। ऑब्वियसली उसने कुछ तो ज़्यादा मेहनत करी होगी, लेकिन कभी कभी उस इंसान को देख के वो आदमी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। नहीं, आई थिंक इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली जो अचीव कर लेता है उससे आप इंस्पायर होते हैं। अगर जहां आपके दिमाग में थॉट आ गया, नेगेटिव थॉट आ गया, तो फिर आप उसकी जो जिसने सक्सेस अचीव की है उससे, उसकी जो खासियत है, जो खास बातें हैं जिनकी वजह से वो जो सक्सेसफुल हुआ, उसको सब मिस कर देंगे आप, उस पर ध्यान नहीं जाता, फिर तो आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं। यू नो, आई थिंक, मुझे लगता है कि हर सक्सेसफुल इंसान किसी भी फील्ड में हो, उससे इंस्पायर होना चाहिए कि ये क्यों पहुंचा वहां तक, तो आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चलेंगी। तो हम डेफिनेटली हम भी उन्हीं लोगों से इंस्पायर हुए, और वो हमारी तरह के लोग थे। आप ही में से बैठे हुए लोग आज जहां बैठे हुए, कल को कहीं और जाएंगे वो, तो आपके साथ बैठने वाले लोग आपसे इंस्पायर होंगे, तो आपके लिए एक रास्ता बनता है। तो आई थिंक वो वही होता है कि अगर हमने सोचना बंद कर दिया उसके बारे में जो सक्सेसफुल हो, या नेगेटिवली सोचने लगे हम उसके बारे में, कह रहे ठीक है यार, क्या है ये वो, तो आप कभी भी नहीं, फिर तो आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। आई थिंक किसी भी फील्ड के वर्ल्ड में जो लोग सक्सेसफुल हैं, हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और फिर वो रास्ता इख्तियार करते हैं हम लोग, इंस्पायर होके, वो डिटेल्स पता चलती हैं हमें, तो हम फिर उसी रास्ते पे चलते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो चेन होती है। यू नो एक टाइम था, आई थिंक 16th सेंचुरी में, आप ही लोगों में से ये हैं, आप ही के बीच से आए हैं, कोई एलियन नहीं है, आसमान से नहीं टपके हैं, आप ही लोगों में से कहीं और जाएंगे लोग। तो एक दूसरे से अगर इंस्पायर होंगे ना हम, तो एक चेन बनती है हमेशा। आखिरी सवाल, आप जिस तरह लोगों को समझता नहीं कि जितना स्ट्रगलिंग वो होता है ऊपर आना, ऊपर बने रहना, उससे ज्यादा बड़ा काम है वो सर पे ताज जो बोलते हैं ना। तो आप अभी आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं, तो वो जगह पे अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं? एक तो ये है कि मैं कभी नहीं मानता कि मैं उस जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है।
कि अपने आप को ये समझना कि मैंने अचीव कर लिया और मैं एक बुलंदी पे आ गया हूँ, अपने आप को ये समझना, आई थिंक वो बहुत डेंजरस है। और जैसे एक कहावत भी है, कहते हैं कि भाई पीक पे पहुँचने वाले जगह ना बहुत कम होती है, बहुत छोटी सी होती है, उस पे एक ही आदमी पहुँचता है ना। वो सस्टेन करना, वो मेंटेन करना वहाँ पे वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब सक्सेस मिल जाए तो थोड़ा सा और ज़्यादा अवेयर हो जाओ। कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे आम ज़्यादा होते हैं वो झुका होता है, आम है ना, जिस पे फल आते हैं जिस पेड़ पे वो झुक जाता है। जब भी आप सक्सेसफुल हों तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा और हम्बल हो जाएं। यहाँ नहीं चढ़नी चाहिए सक्सेस। हाँ बिल्कुल, दिमाग में सक्सेस नहीं चढ़नी चाहिए। तो कभी कभी जैसे हम लोग आपस में दोस्त लोग बात करते हैं कि ऊपर वाला ना सक्सेस बहुत चुन के देता है, वो दे के देखता है पहले कि इसको देता हूँ, इसको भी देता हूँ, सक्सेस है देखता हूँ। तो वो क्या करता है, थोड़ी सी सक्सेस मिलने पे कोड़े मारना शुरू कर देता है लोगों को। मतलब मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उससे बहुत जल्दी एक सक्सेस छीन लेता है ऊपर वाला कि नहीं ये कैरी नहीं कर पाएगा बंदा। उसको देता हूँ, दूसरे वालों को देता हूँ, तो उसको फिर दूसरे वालों को दे के देखता है, वो दिखता है कि यार ये बहुत अच्छे से पचा रहा है सक्सेस को, डाइजेस्ट कर रहा है ये, तो उसको और देता है और देता है। तो ये है सक्सेस का एक्चुअली। So guys, do you think the principles are different to become successful? You know, and वो I'm sure आपको कभी कोई लोग बोलते हैं आप बड़े लकी हो यार, मन करता उतार के साले। मैं लक पे, मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव में मेरा लक पे कभी बिलीव नहीं रहा। ट्रस्ट मी, मैं बिलीव ही नहीं करता। नहीं, जब इतना काम करके कोई आदमी आके बोलता है कि आप बड़े लकी हो, तो ऐसा मन करता है। मैं कैसे लकी हूँ? मैंने मेहनत की यार, मैं लक को कैसे शेयर कर लूँ अपना सक्सेस? बोले लकीली हो गया, कैसे हो गया भाई? मैंने रात दिन जागा हूँ यार, रात दिन मेहनत की है मैंने। मुझे मालूम है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस यहाँ से वहाँ तक ले जानी, कैसे ले जानी है, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो लक को कैसे दे दूँ वो? फॉर एग्जाम्पल मुझे जब ठाकरे का रोल मिला, मैं कहीं से था ही नहीं। ठाकरे कहाँ लगता हूँ मैं? बाला साहब ठाकरे कहाँ से लगता हूँ मैं? अब मेरे सामने दो चैलेंज थे। एक तो ये था कि मिमिक्री नहीं करनी है, मिमिक्री बहुत आसान होता है और लगना भी है बहुत सारे। और इसलिए लगना है क्योंकि अगर नहीं लगूंगा तो हजारों वीडियोस लोगों ने यूट्यूब पे, हजारों बाला साहब ठाकरे के हजारों वीडियोस देखे हैं। अगर थोड़ा सा भी बदल गया तो लोग बोलेंगे कहीं से लग ही नहीं रहा यार ये तो ठाकरे। और कॉपी भी नहीं करनी, मिमिक्री भी नहीं करनी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसके लिए मैंने डे नाइट, रात दिन मेहनत की। ट्रस्ट मी, जब हार्ड वर्क किया, उस पे मेहनत की मैंने, डे नाइट मेहनत की उस कैरेक्टर पे। और जब मैं कैमरे के सामने जाके वो रोल करने लगा तो मुझे भी पता नहीं चला, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी आती चली गई बाला साहब की कि उनके जो बहुत खास रिलेटिव्स थे वो बताते थे कि ये आपने कहाँ से पकड़ा, ये डिटेल कहाँ से पकड़े? मुझे उनकी जैसे हैबिट थी कि पाइप ऐसे पीते थे वो, यहाँ पाइप घुसेड़ के यहाँ पे ऐसे पीते थे, तो उनके हाथ, उनकी उंगलियां हमेशा ऐसे रहती थी, ये इस तरह। और जब स्पीच देते तो यही ऐसे जाती थी वो। तो इस तरह की डिटेल्स, मतलब हर चीज में एक लक नहीं होता, साइंस होता है, हार्ड वर्क होता है, यू नो, प्रोसेस होती है। लक से कोई चीज नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती है। मेहनत की तो दिखने में लगा कि हाँ भाई ये तो है बाला साहब ठाकरे। तो इसी तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको क्राफ्ट मालूम होती है क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं, एक्सपीरियंस होता है, चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होता है।
एजुकेशन होती है उस चीज़ के बारे में, ये बहुत ज़रूरी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक्चुअली। किसी कोई भी काम हो, आई थिंक दुनिया का कोई भी काम हो, उसके लिए हार्ड वर्क, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पैशन, ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी होती है, यू नो। मेरे जैसा, मैं अपने जब गांव में था बहुत ही डल किस्म का डल था, और अभी भी हूँ। इतना कोई खास आपने देखा होगा कि मैं जब बोलता हूँ कोई खास मैं जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में वही बोलता हूँ। मैं कोई बना के नहीं लेके आया हूँ कि भाई मुझे मोटिवेशनल कुछ बोलना है, मोटिवेशन देना है आपको। मैं कोई बना संगार के नहीं आता। जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ वो ये था, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से मैं पैदा हुआ था और बहुत ही डल किस्म का इंसान था, मतलब क्लास में भी पीछे बैठने वाला इंसान था। लेकिन इतना हार्डवर्क अपनी क्राफ्ट में, अपने काम में मैंने इतनी मेहनत की, जब आज मैं कैमरे के सामने जाता हूँ तो वो बहुत आसान हो गई वो चीज़ें, यू नो। कि जब मैं ये कहता हूँ कि जब मेरे जैसा डल किस्म का या इंसान वो अचीव कर सकता है, तो यार आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। सच बता रहा हूँ, आप तो कुछ भी कर सकते हो। So guys, this was Mr. Nawazuddin Siddiqui, which is nothing but a biggest inspiration today for us, right? So can you share some love? Date with Destiny. Thank you very much. Thank you. And I'm sure one day when you guys will come up here, somebody will come here and share. नवाज भाई ने कुछ बोला था, वो पकड़ लिया और उसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया, right? Now, as a token of love, on behalf of entire Date with Destiny, not just me, ये 12,000 लोग जो हैं, इनकी तरफ से एक प्यार भरा छोटा सा एक token of love, appreciation. So we would like to यहाँ पे हर आदमी अपना समय बदलने के लिए आया है। जैसे मैंने बताया था ना, टाइमिंग बहुत जरूरी होती है लाइफ में। बट थैंक यू सो मच, आपका ये प्यार, आपकी ये वार्मथ, एनर्जी, ये कई सालों के लिए मुझे, कई महीनों के लाइव कर देगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Guys, thank you so much, and it was great to talk to you and hope to see you again. Now he's a part of our family. This is the second time in 3 months I'm listening to him actually, right? Guys, once again for Nawazuddin Siddiqui. मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल ना देख दे ये आज मेरा, खोद दे खरोद दे ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा। कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इन पे जोर ना के सत्य पे प्रकाश डाले, बोले सच्चो उसके चेहरे पे तेजाब डाले, घूमे फिर खुले में और जले जो वो नकाब डाले। ऑफ है दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है, दब के जीते हैं दबाने के ये आदी है, सेक्स निषेध है तो इतनी